Hello everyone, I'm Monica. Today's topic is consumer buying behavior for the fifth semester students of fashion department. In this presentation, we are going to learn about the behavior of buyer or consumer before or after buying the product. So let's start with the presentation. First slide is consumer buying behavior. So what is consumer buying behavior? It refers to the buying behavior of final consumer. Final consumer means who wants to buy the product or consume the product. The consumer can be an individual or in a group who buy goods and services for personal consumption, who buy the product for their personal satisfaction. Study consumer behavior to answer is how do consumers respond to marketing efforts the company might use. So what is a consumer uh, behavior? What is his perception? What is his result? What's the reviews about the product which is manufactured by the company or marketing or promoting by the company? So this is a model of consumer behavior which shows the factors which affect the consumer buying behavior. So first is culture, social, family, economical factor and business factor which affect the decision of buying. So another sub factors are motives. What is the consumer motives? Where he or she want to use a product? What is his motive? His attitude? What is learning? Uh, you can say the outcome of the product or reviews of the product given by the persons who consume the product. uh, what is the personality of the consumer, what is his perception, what is his needs, all are the sub factors of consumer behavior. Another model shows the marketing and other factors which are affected by 4 P's. First is product, then second is price, third is place, and fourth is promotion. So what is the product which the consumer want to buy? What is the price of the product? Uh, from uh, from which price he want to buy the price? He want to a less price product or he want to a high price product? He is brand conscious or he is a non-brand, want to use a product of non-branded. What is a place from where the consumer buy the product? It can be a simple market or it can be a mall or it can be a showroom. What is the efforts or what is the strategies to promote the product which was company adopted? So another factors which affect the product or consumer buying behavior is economic factor, technological factor, political factor and cultural factor which affects the buyer's block black box. बायस ब्लैक बॉक्स जो कि बायर के डिसीजन प्रोसेस को इफेक्ट करता है, मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी यू कैन से उसके उसके रिव्यूज किस तरह के थे मार्केट में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो प्रोडक्ट कंज्यूमर की चॉइस को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, मतलब क्या कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को बार बार खरीदना पसंद करेगा या नहीं, ये सब कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के ब्लैक बॉक्स में आता है. देन फाइनली व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ बायर अगेंस्ट द प्रोडक्ट, उसकी प्रोडक्ट चॉइस, व्हाट इज द प्रोडक्ट चॉइस ऑफ बायर. ब्रांड कॉन्शियस, ब्रांड चॉइस, वो ब्रांड कॉन्शियस है या नहीं, ब्रांड इंडियन नेशनल और इंटरनेशनल किस तरह का ब्रांड वो पसंद करता है. डीलर चॉइस, वो प्रोडक्ट कहाँ से खरीदना पसंद करेगा, वो किस टाइम में परचेजिंग, किस टाइम में वो अपनी नीड को सेटिस्फाई करना चाहता है.
प्रेजेंट में या पास्ट में, उसका डिसीजन जो है प्रोडक्ट को बाय करने का वो प्रेजेंट है या आफ्टर सम टाइम, और इन विच अमाउंट ही वांट्स टू बाय द प्रोडक्ट। ही और शी वांट्स टू वेट, मतलब वो तब तक वेट करे कि जब तक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम हो जाए, या वो जब प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है और हाई प्राइस के साथ आता है, जो बायर है प्रोडक्ट को तब बाय करना चाहता है। So another is characteristics affecting consumer behavior. So what are the characters which affect the buying behavior of a buyer? First is culture, मीन्स वो किस कल्चर को बिलोंग करता है, उसका रिलीजन क्या है, इज ही हिंदू और मुस्लिम और सिख, किस सोसाइटी में वो रहता है, उसका सोशल एस्पेक्ट उसके क्या है, उसका उठना बैठना किस तरह के लोगों के साथ है, वो वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, हाउसवाइफ है या कैसे है। देन पर्सनल, उसका प्रोडक्ट को लेके या अपनी नीड को लेके पर्सनल ओपिनियन क्या है, उसकी साइकोलॉजी कैसी है, उसकी साइकोलॉजी अर्बन है, उसकी साइकोलॉजी रूरल है, वो किस एरिया में रहता है, वो मेट्रो सिटी से बिलोंग करता है या वो यू कैन से लाइक रूरल एरिया से बिलोंग करता है। ये सारी चीजें बायर के बिहेवियर को इफेक्ट करती हैं, उसके बिहेवियर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। Another is another is factor affecting consumer behavior, culture. So first is culture. Most basic cause of a person wants and behavior. उसकी values means उसकी values मतलब उसकी moral values क्या है, उसकी जो परवरिश है वो किस तरह के घर में हुई है। मीन्स वो वेस्टर्न लाइक करता है या वो इंडियन लाइक करता है, वो सूट सलवार पहनने वाला कस्टमर है या उसको वेस्टर्न जीन टॉप क्रॉप टॉप्स, ये उसकी प्रेफरेंसेस हैं। दीज आर द वैल्यूज। इसमें दो चीजें आती हैं उसके कल्चर में, सब कल्चर और उसकी सोशल क्लास। सब कल्चर ग्रुप्स ऑफ पीपल विद शेयर्ड वैल्यू सिस्टम बेस्ड ऑन कॉमन लाइफ एक्सपीरियंस। नॉर्थ इंडियन कंज्यूमर्स हैं, उनकी चॉइस कुछ और होगी, अफ्रीकन अमेरिकन कंज्यूमर्स की चॉइस डिफरेंट होगी, एशियंस की डिफरेंट होगी, जो मिच्योर कंज्यूमर हैं, ओल्ड एज है, एज फैक्टर इसमें काउंट करता है, उनकी प्रेफरेंसेस कुछ और होंगी। सोशल क्लास, वो किस क्लास को बिलोंग करता है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, इज ही वर्किंग और नॉट, उसका इनकम ग्रुप क्या, उसका इनकम क्या है, इनकम लेवल क्या है, क्या उसकी बेसिक नीड्स ही पूरी होती हैं इसकी इनकम से, या वो अपनी इनकम में से कुछ सेविंग करता है, उसने अपने आप को प्रोटेक्शंस अपने लिए ली हुई हैं, उसने अपने सोशल सिंबल बनाया है। ये सारी चीजें उसकी इनकम पे डिपेंड करती हैं बायर की। उसकी एजुकेशन लेवल क्या है, देन उसकी वेल्थ, मतलब उसकी क्लास, वो पुअर क्लास का है, मिडिल क्लास का है या वो रॉयल क्लास का है, एलाइट क्लास का है। Another is factor affecting consumer behavior, that is social. सोशल में ग्रुप्स, किस ग्रुप को बिलोंग करता है, मेंबरशिप कहाँ पे है उसकी, रेफरेंसेस, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, हस्बैंड वाइफ, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं बाइंग बिहेवियर को। रोल एंड उसका स्टेटस सिंबल, दीज आर द सोशल फैक्टर्स। Another is personal influence. पर्सनल में एज एंड फैमिली लाइफ साइकिल, उसकी एज, इज ही किड और टीनेजर और यंग गर्ल और अ बॉय और ओल्ड एज, उसका ऑक्यूपेशन, उसका इकोनॉमिक सिचुएशन, उसकी पर्सनालिटी, देन उसकी एक्टिविटीज क्या है डेली, उसका लाइफस्टाइल, उसकी हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस क्लास का कंज्यूमर है। सो उसकी एक्टिविटीज क्या है, उसका डेली रूटीन क्या है, उसका ओपिनियन क्या है प्रोडक्ट को लेके या लाइफ में यू नो अपने लाइफस्टाइल को लेके उसका ओपिनियन क्या है, उसका इंटरेस्ट, लाइक किस तरह के प्रोडक्ट बाय करना वो पसंद करता है। ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। देन साइकोलॉजिकल फैक्टर, उसकी मोटिवेशन, क्या वो प्रोडक्ट खरीदने से पहले किसी से मोटिवेट हुआ है, किसी के रिव्यूज उसे अच्छे लगे हैं तो उसका डिसीजन, उसका बाइंग बिहेवियर वैसा है।
उसके बिलीव्स, उसके एटीट्यूड्स, उसकी प्रेफरेंसेस क्या है, परसेप्शन क्या है, देन लर्निंग, जो प्रोडक्ट यूज किया गया है उसकी जो आउटकम्स आई हैं उनको समझ के उनके प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देख के प्रोडक्ट के फिर उसके लिए बाइंग उसको बाय करने के बारे में सोचना, दैट इज अ कंज्यूमर बाइंग साइकोलॉजिकल फैक्टर। दिस इज अ मैस्लो हायरार्की जिसमें हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बॉटम। फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स मीन्स कंज्यूमर जहाँ पे अपनी सिर्फ बेसिक नीड्स को ही पूरा कर सके, मीन्स उसकी इनकम इतनी है जिसमें वो जस्ट अपने हंगर और अपने थर्स्ट को, अपनी बेसिक नेसेसिटीज को ही पूरा कर पा रहा है। देन सेफ्टी नीड्स, उसकी सैलरी में इतना ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीमेंट या थोड़ा सा ज़्यादा उसकी सैलरी उस लेवल पर होना जहाँ पे वो अब अपने आप को सिक्योर करने की पोजीशन पे आ गया है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की पोजीशन पे आ गया है। लाइक जैसे कि LICs है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, या फिर हम कह सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंसेस हैं जिसमें कि कंज्यूमर अपनी इंडिविजुअलिटी को सिक्योर कर सकता है, अपने लाइफ फ्यूचर को अपने सिक्योर कर सकता है। देन सोशल नीड्स, अब इस लेवल पर उसका कंज्यूमर बाइंग उसकी बाइंग परचेज उस लेवल पर आ गई है जहां पे वो अपनी बाइंग को सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग सोचेगा। मतलब वो अपना ऑरा थोड़ा सा और वास्ट कर लेगा जिसमें कि सोशली अगर उसे ट्रीट करना पड़े तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी बाइंग कर सके। देन एस्टीम नीड्स, ये थोड़ी सी एक्सट्रीम पोजीशन आ जाती है, थोड़ी सी रॉयल पोजीशन आ जाती है जहाँ पे वो अपनी बेसिक नीड्स, सोशल नीड्स के अलावा भी अपने स्टेटस के ऊपर थोड़ा पैसा खर्चना चाहेगा, उसके पास थोड़ा सा सरप्लस है ताकि वो अपनी बेसिक नीड से थोड़ा सा बियॉन्ड होके अपना एक सोशल स्टेटस बना सके। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ डेवलपमेंट, दिस स्टेज शोज जहाँ पे पहुंच के कंज्यूमर सेटिस्फाइड है अपनी इनकम से। नाउ अब उसकी बाइंग में वो सारी चीजें आ गई हैं जो लग्जरी हैं, मतलब जो उसकी एक बेसिक नीड से काफी ऊपर चली गई हैं, मतलब वो अपना एक रॉयल क्लास को टच कर चुका है, वहां पे अपनी लग्जरी लाइक 5 स्टार जो होटल्स हैं उनमें स्टे करना, या यू कैन से लग्जरी कार्स को बाय करना, या एक्सपेंसिव जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बाय करना, सोशल स्टेटस के लिए बाय करना। द बाय डिसीजन प्रोसेस, इसको जो इफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स हैं नीड रिकग्निशन, सबसे पहले कंज्यूमर अपनी नीड देखता है, उसकी नीड क्या है, फिर उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करता है थ्रू द डिफरेंट रिव्यूज जिन्होंने उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी यूज किया है। देन उसको इवेल्युएट करना उन रिव्यूज को, क्या क्या वो रिव्यूज उस प्रोडक्ट के लिए सही है, क्या जो प्रोडक्ट वो चाहता है सेम क्वालिटीज उस प्रोडक्ट में उसको मिलेंगी, देन या नहीं मिलेंगी। देन उसके बाद उसने अपना परचेज डिसीजन बनाना है कि उस प्रोडक्ट को बाय किया जाए या ना किया जाए। अगर बाय किया गया है तो पोस्ट परचेज बिहेवियर, बाय करने के बाद उसके खुद के रिव्यूज क्या हैं, क्या वो अपनी बाइंग से सेटिस्फाइड है या अपनी बाइंग से सेटिस्फाइड नहीं है। देन दिस चार्ट शोज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जिसमें कि सेल्फ कंसेप्शन और लाइफस्टाइल को उन्होंने डिफाइन किया है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सिचुएशन में सबसे पहले प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को कहाँ पे उसको किस तरह के प्रोडक्ट की नीड है जो उसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, देन उसके बारे में सेम वही जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, देन उसे इवेल्युएट करना, और इवेल्युएट करने के बाद एक प्रोडक्ट को उसी कैटेगरी के अलग अलग प्रोडक्ट के साथ, सपोज एक कंज्यूमर मार्केट में कार बाय करने जाता है, सो कार बाय करने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के साथ डीलिंग करता है। लाइक वो रेनॉल्ट की गाड़ीज भी देखता है, वो होंडा की भी देखता है, वो देन टोयोटा की गाड़ीज भी देखता है, सबके रिव्यूज देखता है, देन उनको उनके मतलब जो उनकी इवेल्युएशन है, जो उनके रिव्यूज हैं मार्केट में उनके बारे में अच्छी तरह से स्टडी करता है। देन फिर वो अपने फाइनल डिसीजन पे पहुंचता है कि उसे कौन सी कंपनी की कार बाय करनी है। आउटलेट सिलेक्शन एंड परचेज, कहाँ से बाय करनी है, कौन सी कार बाय करनी है, एंड कौन से आउटलेट से उसे बाय करना है वो प्रोडक्ट। देन उस प्रोडक्ट को बाय करने के बाद उसके रिव्यूज उसके लिए क्या है, उस प्रोडक्ट के लिए क्या वो उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है या नहीं,
इसके उसके अपने पर्सनल रिव्यूज के लिए दो तरह के फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज एक्सटर्नल एंड सेकंड इज इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल में वही कल्चर, सब कल्चर, उसके डेमोग्राफिक्स, उसके एरिया कौन सा है, कहाँ पे वो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, रेफरेंस ग्रुप किन ग्रुप में, मतलब उसकी सोसाइटी कैसी है, कहाँ पे उसको जाके उस प्रोडक्ट को यूज करना है, उसके फैमिली मेंबर्स, उनके रिव्यूज क्या हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज, उस प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाके उस प्रोडक्ट के साथ डील करना, उस प्रोडक्ट को यूज करना। सपोज हमने कार की एग्जांपल ली थी, तो कार उसके लिए कितनी सक्सेसफुल है मार्केटिंग एक्टिविटीज में, उसके फैमिली मेंबर्स के रिव्यूज क्या हैं, उसका सोशल स्टेटस मार्केट में बढ़ा है या नहीं, वो जो उसने कार लेके जानी है उसने कौन से एरिया में उसको यूज करना है, इज इट रूरल और अर्बन, उसका कल्चर उसको अलाउ करता है या नहीं, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं। देन इंटरनल परसेप्शन, उसकी लर्निंग, उसकी खुद की आउटकम्स, उसकी मेमोरी, मोटिव्स, उसका मोटिव क्या है पर्सनली उस प्रोडक्ट को यूज करने का, उसकी पर्सनैलिटी, उसके इमोशंस, एटीट्यूड, ये सारी चीजें उसके इंटरनल फैक्टर्स में आती हैं कंज्यूमर के। देन द बायर डिसीजन प्रोसेस में फर्स्ट नीड रिकॉग्निशन, नीड रिकॉग्निशन में दो तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर में। जो कंज्यूमर की नीड है वो उसका हंगर, थर्स्ट या उसकी नॉर्मल नीड भी हो सकती है, दैट इज इंटरनल फैक्टर। देन एक्सटर्नल में वो प्रोडक्ट बाय कर रहा है उसकी एडवर्टीजमेंट के करके, मैगजीन में उसकी एड देख के, उसका कोई स्लोगन उसने रेडियो पे सुना है, इन सब चीजों को देख के वो प्रोडक्ट को बाय करना चाहता है। दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। देन इंफॉर्मेशन सर्च, उसका इंफॉर्मेशन सर्च करने के सोर्सेज कौन कौन से हैं, उसके पर्सनल सोर्स में उसकी फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, ये सभी आएंगे। कमर्शियल सोर्स, एडवर्टीजमेंट देखी है, कोई सेल्समैन ने उसे कन्विंस किया है, या उसने कोई बहुत ज्यादा उस प्रोडक्ट के बारे में उसे इंफॉर्मेशन मिली है किसी रिसोर्स से। देन पब्लिक सोर्सेज में मास मीडिया, कंज्यूमर रेटिंग ग्रुप, कंज्यूमर ने उसको उसके लिए बहुत अच्छे रिव्यूज डाले हैं, उसे 5 रेटिंग या 4 रेटिंग दी है। देन एक्सपेरिमेंटल सोर्सेज, हैंडलिंग द प्रोडक्ट, उसने प्रोडक्ट को यूज करके देखा है, उसके उसके जो रिव्यूज हैं बहुत बेस्ट निकले। एग्जामिनिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की ट्रायल करके देखी है उसने, एग्जामिन करके देखा है, यूज करके देखा है फाइनली प्रोडक्ट को। देन इवेल्यूशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, उसके एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसका प्राइस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं प्रोडक्ट के। सो इसमें डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस आ जाता है, विच एट्रीब्यूट मैटर मोस्ट टू मी, कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा ये डिसाइड करना। उसके बारे में उसका व्हाट डू आई बिलीव अबाउट ईच अवेलेबल ब्रांड, सभी ब्रांड जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनके बारे में कंज्यूमर की परसेप्शन क्या है। Total product satisfaction based on what I am looking for. How satisfied would I be with each product? ये कंज्यूमर ने देखना होता है कि मैं किस प्रोडक्ट को देख रहा हूँ और कौन सा प्रोडक्ट मुझे प्रॉपरली सेटिस्फाइड कर सकता है। Evaluation procedures, choosing a product and a brand based on one or more attributes. For example, जो प्रोडक्ट मुझे कम रेट में मिल जाए और जिसकी मुझे मैक्सिमम जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिले, जो प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का हो बट लो प्राइस पे हो, उस तरह का प्रोडक्ट और या ब्रांड चूज करना। देन परचेज डिसीजन, परचेज इंटेंशन, डिजायर टू बाय द मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड। इसमें दो तरह के फैक्टर्स हैं, एटीट्यूड ऑफ अदर्स, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशनल फैक्टर्स। एटीट्यूड ऑफ अदर्स मीन्स उस प्रोडक्ट को लेके बाकियों के रिव्यूज क्या रहे हैं, बाकियों के प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए किस तरह के रिव्यू हैं। अगर हम सपोज हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, हम ऑनलाइन बाइंग कर रहे हैं या हम मार्केट से खरीद रहे हैं, अगर हमने किसी से उसके बारे में कोई बैड रिव्यू सुन लिया तो हम उस प्रोडक्ट को वहीं पे ड्रॉप कर देंगे, वहीं पे हम उसे नहीं खरीदेंगे। या फिर सेकंड फैक्टर होता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड नेचुरल कोई प्रॉब्लम आ गई, लाइक जैसे अब जो ट्रेंड चल रहा है कोरोना वायरस का बहुत ज्यादा चल रहा है, तो ऐसा कोई फैक्टर अगर आ जाएगा तो भी हम मार्केट में उस ब्रांड के लिए अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। हम ये हमारा थॉट ये होगा कि आज खरीदने की बजाय हम इस प्रोडक्ट जो हमने आज हमारी नीड है हम उसे आज नहीं खरीदेंगे, हम थोड़ा सा गैप डाल देंगे टाइम का, कि जब तक ये प्रॉब्लम नेचुरल प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती तब तक हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नहीं बाय करेंगे। सो ऐसे जो प्रॉब्लम्स आती हैं दैट इज अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस जो बाइंग डिसीजन को अफेक्ट करती हैं। देन पोस्ट परचेज बिहेवियर, बाय करने के बाद कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है,
कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट परसीव्ड परफॉर्मेंस, इसमें या कस्टमर सेटिस्फाइड होगा या वो डिससेटिस्फाइड होगा, दोनों सिचुएशंस आ सकती हैं। प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने के प्रोसेस में जो स्टेजेस होती हैं, जो स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट इज अवेयरनेस। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इसमें फैक्टर है। जब तक जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट के बारे में अवेयर नहीं है, उसकी क्वालिटीज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में उसे पूरी नॉलेज नहीं है, तब तक उसका उसके बारे में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। अगर वो सारी क्वालिटीज उसकी चॉइसेस से मैच करती हैं तो कंज्यूमर का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट में बन जाता है। देन उसको इवेल्युएट करना, उसको अपने पैरामीटर पे, अपने टेस्टिंग पे, उसको जिसे हम ट्रायल बोल देते हैं, उसे इवेल्युएट करना, देन फाइनली उसकी बाइंग करना। तो दिस इज अ बेल शेप्ड डायग्राम। ये हमें ये शो कर रहा है कि जहाँ पे एक अर्ली स्टेज है 2.5%, जहाँ पे मार्केट में जैसे ही प्रोडक्ट आया, जैसे ही लॉन्च होता है, वैसे ही उस प्रोडक्ट को हाई कॉस्ट पे भी जो कंज्यूमर है वो बाय करने के लिए रेडी होते हैं। These type of consumers are basically belong from a very rich class or elite class. This is the early stage of the product in the market at the high quality or high cost, high price. Then another is 13.5% buyers that are the early adopters, जो प्रोडक्ट को अभी भी महंगे प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार हैं। देन अर्ली मेजॉरिटी, देन 34% पीपल्स और कंज्यूमर्स जो उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं जब उस प्रोडक्ट में थोड़ा सा रेट में, उसके प्राइस में लेस हो जाता है या वो थोड़ा सा कॉमन हो जाता है। देन एक पीक स्टेज आती है। पीक स्टेज के बाद धीरे से उसमें डिक्लाइन आ रहा है, जिसमें फिर 34% जो कंज्यूमर हैं वो उसे तब खरीदते हैं जब वो प्रोडक्ट मार्केट में से अब ऑब्सोलेंस की पोजीशन में आ गया है, उसका प्राइस कम हो गया है। यू कैन से कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉपी जब मार्केट में आनी शुरू हो जाती है, सेम डिजाइन के, जब चीप रेट पे, लेस प्राइस पे सेम डिजाइन में प्रोडक्ट आने शुरू हो जाते हैं, देन 34% बायर्स हैं जो उस प्रोडक्ट को तब बाय करने का डिसीजन लेते हैं। देन 60% लेगर्ड्स। लेगर्ड्स वो होते हैं जब प्रोडक्ट बिल्कुल ही चीप रेट्स में मार्केट में अवेलेबल हो जाए, सेम डिजाइन बट क्वालिटी में भी डिफर हो सकती है, बट डिजाइन, उसकी आउटलुक सेम होगी। लेगर्ड्स वो होते हैं जो उसको बिल्कुल चीप प्राइस पे बाय करने के लिए डिसीजन लेते हैं। तो ये जो टेबल है ये टाइम ऑफ एडॉप्शन बताता है नीचे से, जिसमें अर्ली और लेट दोनों स्टेज के बारे में बताया गया है कि जब मार्केट में प्रोडक्ट आ रहा है तो वो प्रोडक्ट एक अपने टाइम पीरियड में किस तरह से जो उसके कंज्यूमर्स हैं उसे किस किस स्टेज पर कितने कितने कंज्यूमर उसे बाय करेंगे।